Okay, so first and foremost, I would like to give you a preview about the internship program, but for let's first and foremost move forward with the uh, details of what who we are, how are we taking this forward. Okay, so Indore Property Biz is a real estate consulting firm, and we are located in Omac City 1, and we are doing marketing for good brand names based out of bypass location, which is DLF, Vistara, Omac City 1, County Walk, Bonsai, and we are doing dealings in these areas. इन्हीं areas में हम dealing कर रहे हैं. We are also closely associated with Sky Group and Sadhguru Developers, Mchuk Group. Mchuk Group is also known out for many of the good projects in Indore, like Grand Exotica, Ocean Park. So these are some of the big names that they have done work in. Although they have new projects coming up by the name of Exotica City, La Exotica. So these are the majorly projects that are coming up on bypass by these groups. About myself, I'm an engineering graduate and I'm masters in management and marketing. I'm into business come education from many years. I have done corporate training for many years, and I'm also into business. I have my own ventures of various areas like I have hostels and Indrapuri. I manage them and I do this work of consulting also. As we move forward, why Indore Property Biz? So I'm trying to give a shape to the systematic work style of this real estate sector. See, the real estate sector has a very good potential, but lacks in the systematic manner of working. And if you want to purchase a plot, you always feel like that the plot should be a properly like documented plot. The feature should be good. You should be safe with the developer. So there are many things that the people are looking out for. So what I'm trying to do is I'm trying to bring it to more and more better, proper way of dealing in this. We have collaborations and dealings with major brands on bypass, and for that we are now building up the team. Major working is on a bypass, which is on an uprise after the COVID lockdown period. So since last July, when the lockdown opened up, bypass has been an area of uprise for plotting. So the budget plots of 1,000 feet, 1,500 feet, even big plot sizes of 4,000, 5,000 are on a uprise. It has been seen that the rates have risen to a very good extent. What we are looking out for is performance-based working style. We want the interns to be very performance-based. They should be willing to do the work, quality work, and hence we are also willing to give them better returns. We will try to use technology and management principles to leverage the current unorganized sector. See, real estate sector in itself seemed to be unorganized, but now it's becoming more and more organized. Various builders and developers are doing very good work also. After coming up with the RERA, I hope you know what is RERA. RERA is Real Estate Regulatory Authority, which manages that how work is going on in the real estate sector. So after this, things have become many systematic and also up to more consumer oriented, and that is what we in this organization wish to do. That we want to give more and more benefit to the customer, so that the customer is retained by us for more time. So good training environment for interns and certification on the completion of internship. Why real estate? So this is a question that comes to the interns to their mind, that why should we enter real estate? See, real estate is a very lucrative market. You can grow to a very good extent if you do proper work, good work, you maintain your own brand name, you maintain your credibility, because in consulting, credibility is very important. If you are credible, अगर आपको लोग जानते हैं और मानते हैं कि this person is credible enough, then people are going to give you more and more references and hence more and more business. So it's very important to maintain your credibility. Good returns, organic growth. See, basically, if you work in real estate, you can get very good returns. And organic growth means you can grow your business to any extent you wish, right? Disadvantages, I've also mentioned this because it seemed to be unorganized sector in the past, but now many good people are joining in and this business is becoming very systematic.
So trickiness is becoming less and less. So there is less a standard format to this business. This usually क्या होता है in foreign countries, if you go, there is a standard format. एक ही format is followed for the real estate sector. The fixed commission is there and the property is sold like that. But in India, this is a bit of unorganization is there, but that also gives the opportunity to work. देखिए अनऑर्गेनाइजेशन में ही एक अपॉर्चुनिटी होती है उस सेक्टर को और बेटर बना पाने की और अपने लिए भी एक जगह बना पाने की. So आपको you need skill sets, tool sets and a right mindset. If you're working, you will definitely grow in this business. Okay. So what are the expectations from the interns? What are we expecting and what we are going to deliver? Both I'm going to cover. So I am expecting a daily working of 7 hours from 10 to 6 p.m. in which they can have a normal breaks of 45 minutes, 30 minutes and 15 minutes. But this should be a committed period. In this period, you have to do calling to the customers. You have to call them, you have to tell the products that we're going to sell. You're also going to tell them what all options you have. But bigger than that, you're going to also ask what are the requirements of the customer. उनकी requirement को समझना ही सबसे बड़ी चीज है. हमेशा याद रखिए अगर आप customer की requirement को समझते हैं तो ही आप उनको एक better solution provide कर सकते हैं. हम कौन हैं? हम एक solution provider हैं. हम एक problem का solution provide कर रहे हैं. So always remember कि जितना better आप customer की problem को समझेंगे और problem क्या होती है मतलब एक plot की requirement भी एक problem है ना जिसको आप solve करना चाह रहे हैं. So जितना ज्यादा आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे उतने बेहतर तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिस्ट में से पोर्टफोलियो में से. ओके सो द इंटर्न्स हैव टू बी मोटिवेटेड. दे हैव टू डू कोल्ड कॉलिंग, वार्म कॉलिंग, हॉट कॉलिंग. मतलब कुछ ऐसी लीड्स होंगी जो एकदम हॉट होंगी. दे कैन बी सोल्ड लाइक एनीथिंग. उन कस्टमर्स को आपने राइट प्रोडक्ट दे दिया और वो इट विल बी सोल्ड. वार्म कॉलिंग क्या होगी कि देयर आर सम कस्टमर्स दे वांट टू बाय इन प्रॉब्ली 1 महीना 2 महीना में उन्हें खरीदना है. बट ये आपके ऊपर है कि आप उनकी कैसे रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उस पर फीडबैक लूप लगाते हैं, फॉलो अप कॉल करते हैं और अगले 2 महीने में डील को क्लोज करते हैं. कोल्ड कॉलिंग क्या होती है दैट द कस्टमर इज नॉट विलिंग टू बाय राइट नाउ बट आप उसे अवेयर करवाते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी जैसे रिक्वायरमेंट जिस दिन आती है तो आपको कॉल बैक करता है एंड देन यू कैन सेल. सो ये तीनों ही चीजों का मिश्रण जो है इंटर्न्स को करना है. दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्न्स टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है ना. समझना हमें कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, हम इसमें कैसे एक बेहतर आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं. देखिए आज आप अगर इस काम को करते हैं फिर कुछ समय तक आप जॉब करते हैं तो आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. ये ऑप्शन भी आपके पास होता है लेकिन बशर्ते आप इस काम को ढंग से और तरीके से करना जाने. ठीक है. कॉलिंग करना, फॉलो अप करना और यही नहीं डेली के जो कॉल्स हो रहे हैं उनको गूगल शीट में अपडेट करना होगा आपको नंबर्स के साथ और क्या कॉन्वर्सेशन है जो कि डायरेक्टली मेरे से लिंक्ड होगा. तो मुझे आपका डेली का फीडबैक मिलता रहेगा कि आपने क्या काम किया. मैं मोटिवेटेड रखूंगा आपको. डेली मॉर्निंग में हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें आज का एजेंडा तय करेंगे और उसके बाद पूरे दिन की वर्किंग होगी. इवनिंग में क्लोजिंग के टाइम पर एक रिपोर्ट आपको ईमेल छोटा सा करना होगा कि दिस मच वर्क यू हैव डन एंड यू हैव टू क्लोज ऑन द शीट. सो दिस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग जिसको हम फॉलो करेंगे और जिससे कि किसी भी कार्य क्षेत्र में आप किसी भी फील्ड में हो अगर आप इस तरीके से वर्किंग करते हैं तो आपको सेल्स में एक अच्छी सेल करने का तरीका आ जाता है. ओके सो आप ये इंटर्नशिप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियल एस्टेट पर रेस्ट्रिक्ट होते हैं. इसका मतलब ये है कि आप भविष्य में किसी भी चीज को सेल कर सकते हैं. ठीक है. बिकॉज आप ये ध्यान रखें कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी को बेचना एक छोटी चीज नहीं होती. देयर आर 20 क्वेश्चंस दैट कस्टमर्स आस्क. 20 प्रश्न तो कस्टमर पहली बार में ही पूछ लेता है ना. फिर फॉलो अप कॉल्स में और पूछता है बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 20 रुपीज. 20 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं हम, शायद 20 लाख का बेच रहे हैं, 40 लाख का बेच रहे हैं. तो हमें उसमें ऑब्जेक्शन हैंडल करते आना चाहिए. ऑब्जेक्शन क्या होता है कि ऑब्जेक्शन ये होता है जो कस्टमर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है. वो आपसे पूछता है कि मुझे ये नहीं समझ में आया इस प्लॉट में क्या प्रॉब्लम है या क्या चीजें हैं. वो ऑब्जेक्शन होते हैं. उन्हें प्रॉपरली हैंडल करना आपको आना चाहिए. तभी जो है आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं. देखिए इंटर्नशिप का डिस्क्रिप्शन आई हैड पुट इट ऑन इंटर्नशाला आल्सो. ये वही डिस्क्रिप्शन है कि टेली सेलिंग द हॉट लीड्स, वार्म लीड्स एंड कोल्ड लीड्स तीनों को कॉलिंग करना. टेकिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट्स एंड अपडेटिंग द डेटाबेस साइमल्टेनियसली. कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स लेना और डेटाबेस को भी अपडेट करना क्योंकि हमें आगे जाकर उसी पे फॉलो अप करना है ना. उन्हीं क्लाइंट से समझना है.
मैचिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लीड विद द अवेलेबल ऑप्शंस इन द प्रॉपर्टी। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखिए, कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट होगी जिसे आपको समझ के उसे बताना है कि आपके पास में क्या प्रोडक्ट्स हैं। जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उससे उनको मैच करना है, उनको बराबरी पे लाना है और ये कस्टमर को कन्वे करना है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए हमारे पास है जो आपकी रिक्वायरमेंट से मैचिंग है। और फिर उससे उसकी सेलिंग शुरू होती है। उसके बाद लीड को फॉलो अप करना जब तक कि मैच्योर ना हो जाए और क्लाइंट आपको चेक ना दे दे। राइट, यू हैव अ चेक मींस यू हैव स्टार्टेड वर्किंग। हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन क्लोजिंग द लीड एंड बैक एंड पेपर वर्क। देखिए, सिर्फ एक कॉल कर देने से तो कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा। तो यानी मैं और मेरे एसोसिएटेड जो लोग हैं उन्हें आपको हेल्प करनी होगी कि इस लीड को कैसे क्लोज किया जाए। तो बैकएंड में भी कुछ चीजें होती हैं वो करना होती है। अपडेटिंग द सोशल मीडिया फॉर रिव्यूज, एड्स एंड ऑफर्स गिवन बाय द मैनेजमेंट। सोशल मीडिया को अपडेट रखना, फेसबुक पेज को अपडेट रखना, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी कुछ सोशल मीडिया के पेजेस हैं। साथ ही साथ आई वुड बी हैप्पी इफ द इंटर्न्स हैव द नॉलेज ऑफ डिजाइनिंग अ बिट। यूजुअली हम जनरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, दे कैन यूज देयर ओन प्लेटफॉर्म्स या फिर canva.com कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिजाइनर्स। थोड़े थोड़े डिजाइन बनाना सीखें विच दे हैव टू सर्कुलेट ऑन व्हाट्सएप एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स, उन पर सर्कुलेट करना सीखें। बल्क मैसेजिंग और ईमेल एड्स, जब जहां पर हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम डेटाबेस में बल्क मैसेजिंग और ईमेल भी करते हैं, तो उसमें भी इंटर्न्स को हेल्प करनी है। यूजुअली हमारी डीलिंग्स कहाँ होती है? तो यूजुअली डीलिंग्स जो अभी पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में हुई है, प्रिविलॉन के साथ स्काई का एक प्रोजेक्ट है प्रिविलॉन, जो कि शोरूम्स और ऑफिसेज हैं। उसमें हमने शोरूम्स की सेलिंग करी है, ऑफिसेज की करी है। स्काई सिटी जो कि एक नया प्रोजेक्ट स्काई ग्रुप के द्वारा आ रहा है ओमैक्स और काउंटी वॉक के बीच में, फ्रेश प्रोजेक्ट है एकदम, उसकी सेलिंग पिच पे है, पीपल आर सेलिंग लाइक एनीथिंग। स्काई ग्रीन्स जो कि एक पहले का प्रोजेक्ट है, ऑल सोल्ड आउट है कंपनी एंड से, रीसेलिंग चल रही है। देन देयर इज काउंटी वॉक जिसमें हम यूजुअली डीलिंग करते हैं। ओमैक्स सिटी 1 which is also another city where we are located also, our office is also located and our working also goes on. टेक अवे क्या है, क्या चीजें मिलेंगी एक इंटर्न को आफ्टर दिस इंटर्नशिप? सबसे पहली बात तो है you'll get एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ वर्किंग। एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम कहते हैं, बिजनेस किस तरह किया जाता है, उसका एक एक्सपीरियंस आपको रियल लाइफ का मिलेगा। हम देखिए यहाँ पर रियल लाइफ की बातें कर रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग थ्योरी। ट्रेनिंग में मैं वीक में 1 या 2 दिन 1-1 घंटे की ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन उसके अलावा आपको रियल लाइफ वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा जिसमें कि जहां आप मुझे फीडबैक देंगे, मैं आपको फीडबैक दूंगा और आप वर्क को और बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। कैपेबिलिटी टू डील इन अनऑर्गेनाइज मार्केट। देखिए, आपको एक अनऑर्गेनाइज मार्केट में डील करने की कैपेबिलिटी आएगी। आप एक रिटेल शॉप पर काम करते हैं तो आप वो प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके ऊपर उसका एमआरपी लिखा है, उसे बेच देते हैं, डीलिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब आप रियल एस्टेट में आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी अनसर्टनिटीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको आपको शेप देना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि इस चीज को मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे समझाऊं कि कस्टमर मुझसे कन्विंस हो। सो इट्स अ फील्ड ऑफ वेरी मच गुड अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उसमें आपको अपने शब्दों को सुधारना होता है, आपको अपने बात करने को क्राफ्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है ना। सो ये एक तरीका है इस फील्ड में सीखने का। और यकीन मानिए, अगर आप इस फील्ड में काम करना सीख गए तो आप भारत के कई सारे फील्ड में काम कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंदौर मार्केट। देखिए, हमारा मार्केट अभी इंदौर है, हम बहुत सेगमेंटेड हैं कि हमें इंदौर मार्केट में ही काम करना है और यहीं पे रिजल्ट जनरेट करना है। हम एमपी को टारगेट नहीं कर रहे, हम अभी गुजरात को टारगेट नहीं कर रहे। हम इस एक मार्केट को भी अगर मास्टर कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स बट ओनली टू द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मिनिमम 2 मंथ्स कमिटमेंट मुझे चाहिए, मैक्सिमम आप 6 मंथ्स भी करें तो आई विल बी मोर हैप्पी। क्योंकि मैं अगर आपको आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं आपके साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको आज मेरे रिसोर्सेज दे रहा हूँ, आपको स्काई के ऑफिस में मैं चाहूंगा कि एक बार लेकर चलूँ, आपसे मीटिंग्स कर रहा हूँ, तो ये सारा चीजें जो होंगी ये एक तरह का मेरी तरफ से एफर्ट्स है। तो उस पर अगर मुझे ज्यादा अच्छा आउटकम चाहिए तो मैं चाहूंगा कि इंटर्न मेरे साथ 6 महीने तक रहे। बट इफ नॉट पॉसिबल, 2 to 3 months इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग द इंटर्न्स टू बी विद, है ना। इतना समय मेरे साथ रहें, वो भी सीखें, मैं भी एक तरह से उनसे कार्य की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। याद रखिए कि यू विल लर्न हाउ टू क्राफ्ट वर्ड्स फॉर बेटर कॉन्वर्सेशन, पॉजिटिव yet पावरफुल वर्ड्स। देखिए, पॉजिटिव शब्दों को बोलना, किस तरह डीलिंग को बात करना, किस तरह कस्टमर को किसी प्रोडक्ट को दिखाना, उसे इम्प्रेस करना, कन्विंस करना, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो धीरे धीरे आप सीखते हैं।
और इसे आई होप कि जो भी एक सिंसियर इंटर्न मुझे ज्वाइन करेगा वो इसे बिल्कुल सीखेगा। आई एम श्योर, आई एम डैन कॉन्फिडेंट, लेकिन सिंसियरिटी आप अपने तरफ से रखिए, सिखाना मैं अपने तरफ से करवा लूँ। सो दिस वाज अबाउट इट, दिस वाज अबाउट द इंटर्नशिप प्रोग्राम। और डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस वेलकम है। तो एक हम चाहेंगे कि एक बार मनीष जी हमारे बीच एक आप लोगों को एक आउटपुट दे, आपको एक छोटी सी चीज भी अगर आज आपको देते हैं तो आपको एक पॉजिटिव मैसेज देंगे एक इंदौर मार्केट के बारे में, एक किस तरीके से किस अप्रोच को रखें। देखिए कई दफा हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनको एक शब्द में एक लाइन में ये सिखा देते हैं जिसपे हमें थॉट प्रोसेस करने की जरूरत है कि कैसे आगे बढ़ना है। मनीष जी ने इस इंदौर मार्केट को 25-30 साल तक देखा है और इन्होंने समझा है, तो आज अगर वो हमें एक थॉट भी दे देते हैं तो हम उसे अगर आगे चल के इम्प्लीमेंट करते चलते हैं तो हम सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो मनीष जी आप क्या एक थॉट इन्हें देना चाहेंगे इंटर्न्स को और कैसे कार्य करें ये ताकि एक अच्छा करें? अनम्यूट कर लीजिएगा मनीष जी, अनम्यूट, आप म्यूटेड हैं। हाँ जी मनीष, हाँ जी, आ रही आवाज? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। कस्टमर सेंट्रिसिटी पे जो आप मुझे बता रहे थे कि कस्टमर के प्रति किस प्रकार से इनको एक जो होना चाहिए रिक्वायरमेंट निकालने वाली बात जो आप मुझे बता रहे हैं। वैसे तो यश आपने सारी बातें इनको डिटेलिंग कर दी है। मेरा इन लोग सिर्फ यही कहना है कि कस्टमरों के माइंड को पहले समझो कि मतलब कस्टमर चाहता क्या है। कई बार क्या रहता है, वो एरोड्रम की बातें करता है, एरोड्रम एरिया की बात करता है और डिटेलिंग्स मतलब और लेता परचेस करता है वो बाईपास के यहाँ। पहले तो कस्टमर को अपने को समझना है कि मतलब चाहता क्या है कस्टमर, उसका बजट पूछो, किस एरिया में वो रहता है, क्या उसकी जॉब प्रोफाइल है उसकी और कितने टाइम से वो मतलब रह रहा है। पहले तो उसका पूरा अपने पास डाटा होना चाहिए, व्यू होना चाहिए उसका कि क्या चाहता है। मैं सिर्फ यही टिप्स देना चाहूँ, उसी से ये बच्चे लोग क्लिक कर लेंगे कि हाँ ये पक्का लीड है कि नहीं। वेरी वेरी करेक्टली सर, वेरी करेक्टली। बीच में हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि एक क्लाइंट आपको एक वेग माइंड से भी कई बार अप्रोच कर सकता है। वो आपसे कहेगा कि आई वांट अ प्लॉट ओवर हियर, लेकिन कई बार उसकी रिक्वायरमेंट दिखाते दिखाते चेंज होती जाती है। आप कई दफा कई सारी उसको टाउनशिप्स और प्लॉट्स दिखाते हैं और अल्टीमेटली टर्नआउट होता है कि वो एक थर्ड ही या फोर्थ ही फिफ्थ प्रॉपर्टी जाकर परचेज करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उतना अच्छा रहेगा कि जितना आप शुरू में उसकी रिक्वायरमेंट को समझ लेंगे तो उतना प्रिसाइज आप उसको उस प्रॉपर्टी तक गाइड कर सकते हैं और आपसे खरीदे। देखिए आज का युग एक कॉम्पिटिटिव युग है, कस्टमर के पास कई सारे ऑप्शंस हैं कंसल्टेंट्स के, ब्रोकर्स के, तो कोई जरूरी नहीं है कि कस्टमर आप ही से खरीदे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से उसे कन्विंस करते हैं, उसको सही प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पे दिखाते हैं ताकि वो उसे आपसे ही परचेस करे और आपसे ही जुड़ा रहे। वेरी वेरी नाइस थॉट मैंने कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज है। उसे अपने हिसाब से आप प्रोडक्ट नहीं दिखाना, आपकी रिक्वायरमेंट को उसे मैच करना है। थैंक यू जी मनी जी, थैंक यू वेरी मच। अब आई लाइक कि अगर हम